Hey, hi everyone. Greetings from Harshvardhan Tripathi. Good morning. Welcome to the Daily Hindu News Analysis. Today we are going to discuss August 28th, 2022. This is Harshvardhan Tripathi and this is the index that we have to study from the Hindu newspaper today. You see, every day the newspaper is not the same. Today we might find a lot of areas that are required to be covered. Some of the areas have been covered in depth by me, whereas I would be asking you or directing you to look into the right matters. So this is the index, first 8 topics followed by another 5. Now, the very first topic is that recently Supreme Court judges' rules have been amended and certain new amenities have been given to the retired justices of the Supreme Court for a particular year. And this has been recently criticized also, but then we have to understand what are the judges' rules. POCSO case has been filed against Karnataka peer. It's not peer, it's seer. So POCSO Act क्या है, क्यों लाया गया था? क्योंकि वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इन्वॉल्व हैं GS3 में, तो उनके लिए इंपॉर्टेंट है. Single brand to help curb fertilizer cost. You know, India is dependent too much on fertilizers import. And for that matter, single brand fertilizer has been promoted for domestic consumption and domestic production of fertilizers. So we need to understand the types of fertilizers and why India is so much dependent on the imports of the fertilizers. इंडियन मिशन श्रीलंका का जो है, उन्होंने चाइनीज एनवॉय को स्लैम किया है. इंडियन मिशन, जैसा कि आपने सुना है, युआंग वांग 5 नाम का एक शिप जो श्रीलंका में आया था, उसको इंडिया ने रोकने की कोशिश की थी कि वो यहाँ श्रीलंका में आके डॉक न करे. और इसी के बेसिस पे जब वो 18 से 22 अगस्त में यहाँ पे आया, तो श्रीलंका के एनवॉय ने इंडिया की तरफ इशारा करते हुए श्रीलंका में यह कहा कि 17 बार श्रीलंका वालों ने इंडिया के अग्रेशन को 17 बार इंडिया के अग्रेशन को श्रीलंका पे उन्होंने रोका है. इस रिमार्क पे इंडिया ने काफी स्टर्न रिएक्शन लिया है. अब देखते हैं कि उसका क्या जियोपॉलिटिकल इंपैक्ट हो सकता है. ट्राइपार्टाइट सिस्टम ऑफ कंसल्टेशन इन लेबर लॉस. अभी रिसेंटली लेबर की एक ऑल ओवर इंडिया की मीटिंग हो गई जिसमें लेबर यूनियंस को बुलाया नहीं गया. तो ये क्या होता है ट्राइपार्टाइट सिस्टम, जिसके बारे में लेबर यूनियंस ने काफी क्रिटिसाइज किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को और बोला है ये BR अम्बेडकर साहब की जो सोच है, विचारधारा थी लेबर लॉस को लेके, उनके काफी अगेंस्ट जाते हुए दिखाई दे रहे हैं. PM seen promoting the use of khadi products. Now this is the historic photograph that has been recreated. So you will find a prime minister, spinning the charkha and talking about the promotion of khadi products. Now this is indeed going to be there, remembered and recreated again and again whenever we would be talking about Narendra Modi, whenever we would be talking about his legacy, or whenever BJP wants to promote that they stand with Gandhian principles and they stand with non-violence, ahimsa and satyagraha. So this is the historic image that has been there on the Hindu newspaper today. I thought of putting it on my front page. Now we will discuss that. India supports Argentina and Malvina case. Falkland Islands and Malvina, these are the two areas where Argentina is having problems with United Kingdom. All for what? Water? Territory? No. All for oil. New CJI plans to have one constitution bench functioning. Now 49th CJI, the shortest tenure, 74 days का tenure है इनका. इसमें इन्होंने कहा है कि ये संविधान के जो पेंडिंग केसेस हैं उनको जल्दी से जल्दी खत्म करने की कोशिश करेंगे और बेंचेस का गठन करेंगे. इंटेलिजेंसीज ने ये कहा है कि हमें जो क्रिप्टो करेंसीज हैं उनको एग्जिस्टिंग कानून के अंदर लेके आइए ताकि हम विजिलेंस कर सकें. अभी हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो क्रिप्टो करेंसीज के पेमेंट पे विजिलेंस नहीं कर पाती है बिकॉज देयर इज नो लॉ गवर्निंग इट. नाउ for that matter, to bring any legal action against anyone, it is important that there has to be a law. Now cryptocurrency पे लॉ बनाने में तो कहो पार्लियामेंट को बहुत समय लग जाए, तो इंटेलिजेंसीज ने हमारे यहाँ पे सिंपली ये कहा है कि आप उसको हमारे प्रिवेंशन ऑफ PMLA एक्ट के अंडर ले आइए, इंडियन पीनल कोड के अंडर ले आइए, CRPC के सेक्शन 91 के अंडर ले आइए, ताकि हम उसको एक क्रिटिकल इंफॉर्मेशन की तरह मान के प्रिजर्व तो कर सकें एविडेंसेस. 10th, रशिया ने न्यूक्लियर ट्रीटी जो है, अगेन इट्स अ फेमस ट्रीटी, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, इस पे ब्लॉक एग्रीमेंट कर दिया है. वापस से कुछ निष्कर्ष नहीं निकला. 2015 के बाद की जो अभी मुलाकात थी ये वापस से फेल होते हुए नजर आई है. रशिया और चाइना का कोऑपरेशन आर्टिक रीजन में कंसर्न है.
ये रशिया और चाइना वापस से क्यों आ गए आर्टिक रीजन में आखिरकार, और जेंस स्टोल्टनबर्ग ने क्यों कहा कि नाटो के लिए ये कंसर्न है, यह हम मैप के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। इंप्रूविंग एक्सेस टू एंटीबायोटिक्स। नाउ एंटीबायोटिक्स में एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस जिसको बोलते हैं AMR, इंडिया उसकी वर्ल्ड में कैपिटल माना जाता है। क्या होते हैं कॉजेज माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के? क्या ऐसा है कि एंटीबायोटिक्स के ज्यादा यूज से ऐसा हो सकता है कि आपको असर ही करना बंद कर जाए, या एंटीबायोटिक के अनप्रिस्क्राइब्ड डोज या इनकम्प्लीट डोज की वजह से आपको रेजिस्टेंस आता है? ये समझने की बात है, क्योंकि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस अगर हो गया, यानी कि ऐसी एक तरह की बॉडी में रेजिस्टेंस कि एंटीबायोटिक्स आपके ऊपर काम ही ना करे, ये अपने आप में एक खतरनाक चीज हो सकती है। बिकॉज कोई भी छोटी से छोटी बीमारी या तो वो वायरल ओरिजिन की होती है या तो वो बैक्टीरियल ओरिजिन की होती है, और एंटीबायोटिक्स दोनों ही तरह की बीमारियों पे अच्छे से असर करती है। तीसरा लास्ट टॉपिक जो है 13वां टॉपिक, बिल्किस बानो के कॉन्विक्ट आखिरकार कैसे छूट गए। इसमें जो एक वर्ड है रेमिशन, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम डिस्कस करते हैं आज के पेपर को, फर्दर करते हैं अपने करंट अफेयर्स के डिस्कशन को। All right, so in this particular video, what are we first going to cover is this. Now if you notice that the center has amended Supreme Court judges rules, and amendment rule ये कहते हैं कि उनको ड्राइवर मिलेगा, डोमेस्टिक हेल्प मिलेगी पोस्ट रिटायरमेंट के बाद भी। ये जो सुप्रीम कोर्ट रूल्स हैं ये बेसिकली अगस्त 23 में लेके आए थे, जब रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट जजेस को ड्राइवर, सेक्रेटेरियल असिस्टेंस और सिक्योरिटी कवर की बात की गई थी दोस्तों। तो ये आप जानिएगा कि सुप्रीम कोर्ट हमारे यहाँ पे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो प्रायोरिटी ऑर्डर में काफी इंपॉर्टेंट आते हैं, और सीजीआई का जो प्रेफरेंस ऑर्डर है वो 6th रैंक पे है, 6th रैंक पे है। उनको स्पीकर ऑफ द लोकसभा के साथ प्रेफरेंस में रखा जाता है। तो अब ऐसे में क्या है, ये क्यों किया गया? ये इसलिए किया गया है बिकॉज अभी जजेस पे काफी अटैक्स हो रहे हैं। मान लो किसी सुप्रीम कोर्ट के जज ने या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कोई एंटी गवर्नमेंट या किसी एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट के अगेंस्ट में डिसीजन दे दिया, और फिर वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं रहे या सुप्रीम कोर्ट के जज से उनका रिटायरमेंट हो गया, तो क्या उसके बाद क्या उन पे पर्सनल अटैक नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। इस चीज को रिकॉग्नाइज करने के लिए ये कहा गया है कि 24 घंटे की सिक्योरिटी दी जाएगी, एक्सटेंडेड टू 5 years फॉर रिटायर्ड चीफ जस्टिस एंड 3 years फॉर रिटायर्ड जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। द जुडिशरी हैड रिसेंटली रेज कंसर्न्स अबाउट द अटैक्स ऑन जजेस, और इस केस में ये चीजें जो हैं मिनिस्ट्री ऑफ लॉ ने चेंज की हैं। और इनके अलावा फॉर्मर सीजीआईज और रिटायर्ड जजेस ऑफ द टॉप कोर्ट कैन गेट देयर मंथली मोबाइल फोन एंड इंटरनेट बिल्स रीइंबर्स टू द एक्सटेंट ऑफ ₹4,200, यानी 4,200 रुपए रीइंबर्स करा सकते हैं सरकार से। और रेंट फ्री टाइप 7 अकोमोडेशन भी मिलेगा, और ऑफिशियल रेसिडेंस न्यू दिल्ली में 6 months तक आफ्टर रिटायरमेंट। ये सारे जो रूल्स हैं ये मैंडेट करते हैं कि चीफ जस्टिस और जजेस जो हैं वो जब एयरपोर्ट पे आए या कहीं पे भी आए तो उनको सेरेमोनियल तरीके से रिसीव किया जाए। ये नोटिफिकेशन जो है ये लॉ मिनिस्ट्री ने इशू किया है, और कहा है कि जो पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स जो हैं ये सिर्फ रिटायरीज को अवेलेबल होंगे अगर इसी तरह की फैसिलिटीज उनको हाई कोर्ट या स्टेट गवर्नमेंट बॉडी से नहीं मिल रही है। तो इसीलिए गवर्नमेंट जो है सुप्रीम कोर्ट के सामने, क्योंकि बहुत बड़ा लिटिगेंट होता है, तो इस पर पब्लिक डिबेट चल रहा है, अभी काफी ज्यादा पब्लिक आउटरीच चल रहा है कि पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स जो हैं वो क्या गवर्नमेंट दे रही है जुडिशियरी को, क्या उनके ओपिनियन को, उनके डिसीजंस को बायस करने के लिए। तो ये एग्जिट बेनिफिट्स जो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने बहुत न्यूज को सिंप्लीफाई कर दिया है आपके लिए। क्या अमेंडेड रूल्स में कह रहा है, कर्टसी प्रोटोकॉल्स की बात कर रहा है, लॉ मिनिस्ट्री ने इशू किया है, और क्यों इसका क्रिटिसिज्म है। ठीक है, तो ये 5 बातें जो कही गई हैं ये आप देख लीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट जजेस रूल्स के अंदर की गई हैं। सुप्रीम कोर्ट जजेस रूल्स, अब क्वेश्चन ये आता है कि सुप्रीम कोर्ट जजेस रूल्स को बनाने की पावर किस मिनिस्ट्री के अंडर होगी? ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, बहुत लोगों को क्लिक नहीं करेगा। आपको आंसर पता है, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस की होगी, और इसके करंट मिनिस्टर हैं किरेन रिजिजू। Moving further ahead, if we move to the another topic,
ये पॉक्सो एक्ट के ऊपर है। ये देखिए, पॉक्सो एक्ट हमारे लिए एक स्टैटिक टॉपिक है। करंट अफेयर्स में आया है कि पॉक्सो केस जो है वो कर्नाटका के सीआर के अगेंस्ट फाइल हो गया है। चीफ ऑफ मुरुगा मठ हैज बीन अक्यूज्ड ऑफ सेक्सुअली हरासिंग गर्ल्स। नाउ वी आर नॉट गोइंग टू दिस गो इनटू द डेप्थ ऑफ व्हाट द मैटर इज, बिकॉज यू सी, अगर कोई चीज अगर एफआईआर रजिस्टर हुई है तो देयर इज अ लीगल प्रिंसिपल जो कहता है एवरीबडी इज इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। सो वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस अबाउट द particulars of the case as to why he has been, allegedly it has been stated against him. But whatever we are going to discuss is that what is the legislation that protects the children from such sexual offences, and what is the provision of this district welfare committee. Because recently what we have seen, the trend is that law and order situations, anything that is involving law and order is also being asked. So we are going to cover that also. So पॉक्सो एक्ट को डिफाइन किया गया है दैट इट इज टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम ऑफेंसेस ऑफ ए सेक्सुअल असॉल्ट, बी सेक्सुअल हरासमेंट एंड सी pornography, and that fourth that there would be special courts that would be conducting the trial of such offenses and matters connected therewith or incidental thereto. Now please understand that POXO courts are the courts where children are the victim, not the aggressors. All right. For aggressors, there is a different body, Juvenile Justice Board. Now, POXO court and POXO court and Juvenile Justice Board, Juvenile Justice Court, both are different in their functioning. In POXO court, children is the victim, are the victim, and in JJ court, children are the aggressor. So this act particularly was passed in 2012 by which ministry? Ministry of Women and Child Development. Please remember this. 2012 में ये कानून मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट द्वारा प्रस्तुत किया गया था और पास किया गया। फिर पॉक्सो एक्ट को जब पास किया गया तो बोला गया कि जो चिल्ड्रन हैं 18 साल के नीचे के, उनको सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअल अब्यूज, सेक्सुअल हरासमेंट और पोर्नोग्राफी से बचाना है। ये बेसिक फंक्शनिंग है इसकी। अब 2019 में इस कानून को फिर से बदला गया और क्या क्या चीजें की गई वो हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, एक्ट कहती है कि इन्वेस्टिगेशन जो है वो 2 महीने के अंदर अंदर कंप्लेन हो जानी चाहिए जिस समय एफआईआर हुआ है, और पूरा का पूरा मैटर 6 महीने के अंदर अंदर निस्तारित कर देना चाहिए कोर्ट के द्वारा। यानी कि ये स्टैट्यूटरी टाइम लिमिटेशन है। क्या है? ऐसी चीजों को क्या कहते हैं हम? कानूनी रूप से जो आपको टाइम की बाधा लगाई गई है उसको हम कहते हैं स्टैट्यूटरी टाइम लिमिटेशन है। क्या? इन्वेस्टिगेशन कितने दिन में कंप्लीट करनी है? 2 महीने में कंप्लीट करनी है, और ट्रायल पूरा का पूरा मैटर 6 महीने में कंप्लीट करना है। और चाइल्ड क्या होता है? इस एक्ट की डेफिनेशन के हिसाब से कोई भी बच्चा जो 18 साल के नीचे का है उसको चाइल्ड बोलते हैं। और सजा क्या मिलती है? देखिए, सजा है रिगोरस इंप्रिजनमेंट। याद रखिएगा, हमारे इंडियन पीनल कोड में, आईपीसी में 5 तरह के 5 फॉर्म्स ऑफ इंप्रिजनमेंट हैं। 5 फॉर्म्स ऑफ इंप्रिजनमेंट है, जिसमें सबसे खतरनाक है डेथ पेनल्टी। अब क्योंकि डेथ पेनल्टी यूरोपियन कंट्रीज और वेस्टर्न डेमोक्रेसीज मना करती हैं, यूनाइटेड नेशंस ने भी कहा है कि डेथ पेनल्टी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर में नहीं देनी चाहिए। इसी लाइट में सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है। तो इसीलिए सेकंड जो खतरनाक इंप्रिजनमेंट होता है वो होता है रिगोरस इंप्रिजनमेंट। यानी कि कानून में जब आपको सजा देगा कानून और आपको जेल में डालेगा तो आपको फिर काम भी करना पड़ेगा जेल में रह के, उसको कहते हैं रिगोरस इंप्रिजनमेंट। तो जो रिगोरस इंप्रिजनमेंट है वो अप 10 इयर्स का है, जिसको कि इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ तक भी बढ़ाया जा सकता है या फाइन भी बढ़ाया जा सकता है अगर पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट हो। पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट और सेक्सुअल असॉल्ट में बस इतना डिफरेंस है कि अगर आपने किसी भी बच्चे की बॉडी को ग्रोप किया, टच किया, अननेसेसरीली उसको आपने प्रोवोक किया बॉडीली जेस्चर से, वो सारी चीजें सेक्सुअल असॉल्ट के अंदर आ जाती हैं। अगर आपने पेनिट्रेशन करने की कोशिश की है विदाउट पेनिट्रेटिंग, बिकॉज अगर आपने पेनिट्रेट कर दिया देन इट वुड बी रेप। अगर आपने पेनिट्रेट नहीं किया है इनटू द हाइमेन एंड द वजाइना, देन if you are taking an attempt, then it is penetrative sexual assault, and for that there is a imprisonment for life as per the POXO Act. Now this law is very strict law. So imprisonment for a term shall not be less than 20 years, but it may extend to imprisonment for the remainder of the person's natural life, and shall also be liable to fine or with death. And the present is that imprisonment for no less than 10 years, which may extend to life. So this particular amendment have been proposed to make it more stringent. नाउ पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट की जो प्रेजेंट पनिशमेंट थी वो 7 इयर्स थी। तो 2019 में ये जो सेकंड वाला सजेशन है इसको मान लिया गया, राइट। और ये कहा गया कि अगर चाइल्ड बिलो 16 इयर्स का है, यानी 16 से 18 साल तक है, तो आपको सजा
हो सकता है कि 10 ईयर्स तक की मिले, लेकिन अगर 16 साल से नीचे का बच्चा है तो 20 साल तक की आपको सजा होगी और पर्सन नेचुरल लाइफ रिमाइंडर, यानी जितने समय तक जियोगे उतने समय तक जेल में रहोगे। पॉक्सो जो है वो कहता है कि अगर कोई सेक्सुअल असॉल्ट एग्रेवेटेड है, अगर अब्यूज चाइल्ड की मेंटली इल चाइल्ड की अब्यूज हो, और जब अब्यूज कोई कमिटेड करे मेंबर ऑफ द आर्म फोर्सेस, अदर सिक्योरिटी फोर्सेस, पब्लिक सर्वेंट या अ पर्सन इन पोजीशन ऑफ अथॉरिटी ऑफ द चाइल्ड लाइक फैमिली मेंबर, पुलिस ऑफिसर, टीचर और डॉक्टर, पर्सन मैनेजमेंट और स्टाफ ऑफ अ हॉस्पिटल वेदर गवर्नमेंट और प्राइवेट। नाउ ऑल दिस इन्वॉल्व्स द matter to be reported under sexual assault. Now real life considerations for court while deciding bail. अगर बेल का मैटर आता है तो कोर्ट क्या करता है, सबसे पहले देखता है माइनर विक्टिम की उम्र क्या है। जितना ज्यादा विक्टिम छोटा है उतना हीनियस ऑफेंस है, उतना सीरियस ऑफेंस है। अक्यूज्ड की एज क्या है, अक्यूज्ड जितना ज्यादा ओल्डर है और उतना ज्यादा हीनियस माना जाता है। कंपैरेटिव एज ऑफ विक्टिम एंड अक्यूज्ड, द मोर देयर एज डिफरेंस द मोर द एलिमेंट ऑफ परवर्जन इन द ऑफेंस अलेज्ड। फैमिलियल रिलेशनशिप, closer है relationship, the more odious the offense alleged. What does section 29 of the POCSO Act say? That when a person is prosecuted for committing an offense of sexual assault against a minor, the special court trying the case shall presume the accused to be guilty. Now presumption of innocence, इस केस में presumption of innocence जो है, everybody is innocent until proven guilty shift हो जाता है। प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस खत्म हो जाता है, आपको कानून इनोसेंट प्रिज्यूम नहीं करता है। शैल प्रिज्यूम का मतलब यह है कि आप गिल्टी ही प्रूव किए जाओगे और आपको यानी कि प्रोसिक्यूशन को नीड नॉट प्रूव एनीथिंग। प्रोसिक्यूशन को कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं है। जो व्यक्ति अक्यूज्ड है, अक्यूज्ड प्रूव करेगा दैट ही इज नॉट गिल्टी। नाउ दिस इज अ शिफ्टिंग ऑफ from the criminal principles. This is why POCSO Act is so stringent, so serious, right? इस एक्ट को 2019 में अमेंड किया गया था, इंक्रीज द मिनिमम पनिशमेंट फॉर 7 years to 10 years. इट फर्दर एडेड दैट अगर पर्सन पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट कमिट करता है 16 साल के बच्चे के नीचे तो वही 20 साल के ऊपर की सजा, इसको हम कहते हैं आजीवन कारावास भी कहते हैं। तो ये सारी की प्रोविजंस हैं जो कि ऑर्डिनेंस के माध्यम से पहले लेके आए और बाद में पार्लियामेंट में पास कर दिया गया। तीसरा टॉपिक, सिंगल ब्रांड टू हेल्प कट फर्टिलाइजर कॉस्ट। वन नेशन वन फर्टिलाइजर, ये अपने आप में आंसर राइटिंग के लिए आपको काफी हेल्प करेगा और कह रहा है कि क्रिस क्रॉस मूवमेंट फॉर लॉन्गर डिस्टेंसेस जो है वो फर्टिलाइजर का बेसिकली क्या होगा, रिड्यूस होगा। अब इंडिया जो है, अगर आप इस ग्राफ को समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये देखिए ब्लू रिप्रेजेंट कर रहा है जो हम डोमेस्टिक हमारा कंजम्पशन है, और 55 जो ये आपको येलो रिप्रेजेंट कर रहा है ये हमारा इंटरनेशनली dependency है. So you will find 55% and 100% we are dependent for DAP and MOP. So what is DAP? DAP is diammonium phosphate, a highly enriched fertilizer जो कि यील्ड को काफी अच्छा प्रमोट कर देता है, क्रॉप प्रोडक्शन का रेट बढ़ा देता है। और दूसरा म्यूरेट ऑफ पोटैश है, पोटेशियम क्लोराइड है जो कि हमारे यहाँ नहीं बनता, 100% हम इंपोर्ट करते हैं। इंटरनेशनल प्रेशर की वजह से ये फर्टिलाइजर के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। फर्टिलाइजर्स के प्राइसेस, जैसे ही फर्टिलाइजर्स के प्राइसेस अगर बढ़ेंगे तो आप इसका इंपैक्ट क्या समझ सकते हैं। फर्टिलाइजर्स अगर इंटरनेशनल मार्केट में अगर इनका रेट बढ़ता हुआ नजर आ रहा है तो हमारे यहाँ पे इंपोर्ट जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा डियर, कॉस्टली हो जाएगा। जब इंपोर्ट कॉस्टली हो जाएगा तो हमारे लागत जो है, इनपुट कॉस्ट जो है वो बढ़ जाएगी। इनपुट कॉस्ट बढ़ रही है ऐसे समय पे जहां पे डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ रही है, तो डिमांड बढ़ रही है और इनपुट कॉस्ट भी बढ़ रही है। ये प्रॉब्लम करेगा इन्फ्लेशन में, और ये प्रॉब्लम करेगा इन्फ्लेशन टूवर्ड्स फूड इन्फ्लेशन में, जो कि हमारे लोअर सेक्शन के लिए, एग्रीकल्चर इकोनॉमी है तो लोगों के लिए भी, डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए भी बड़ा खतरनाक, घातक हो सकता है। श्रीलंका का एग्जांपल हमारे सामने है जहां पे उन्होंने नेचुरल फर्टिलाइजर्स को प्रमोट करने के लिए केमिकल फर्टिलाइजर्स का इंपोर्ट बंद कर दिया था। अब इंडिया की इंपोर्ट अगर की स्थिति माने तो 2019 से लेकर 2022-23 का ये जो प्रोजेक्शन है, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हम लोग क्या कर रहे हैं, सऊदी अरेबिया, ओमान, चाइना, कनाडा से इंपोर्ट करा रहे हैं। इसके अलावा जो अतिरिक्त जो बाकी कंट्रीज हैं वो इजराइल है, वो रशिया है, वो लिथुआनिया है ना। रशिया आपको पता है जंग में है, तो हमारा बहुत सारा जो एनपीके फर्टिलाइजर है वो सब रशिया से आता है। तो ये सारी चीजों को कंट्रोल करने के लिए सेंटर ने वन नेशन वन फर्टिलाइजर नाम की
योजना लॉन्च की है प्रधानमंत्री भारतीय जनुर्वरक परियोजना के अंदर, PMBJP। कितना आसान है इसका नाम याद करना ना, प्रधानमंत्री जनुर्वरक परियोजना भारतीय बीजेपी। इस पर सेल्फ प्रमोशन यूनियन मिनिस्टर ऑफ फर्टिलाइजर्स और केमिकल्स मनसुख मांडवी जी ने कहा है दैट द स्कीम वाज एम्ड एट रिड्यूसिंग द लॉजिस्टिक यानी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इन्वॉल्व्ड इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फर्टिलाइजर्स। इंडिया इंपोर्ट्स मच ऑफ इट्स फर्टिलाइजर्स फ्रॉम इजराइल, रशिया एंड लिथुआनिया एंड अदर सच countries. Now you can read the news over here. He said that the production and the distribution process would be redrawn as the companies would not have to support their products beyond 500 kilometers on average. Now whatever they are manufacturing 500 किलोमीटर की रेंज में क्या करना है, उनको बेच देना है। कुछ एसेंशियल, जैसे कि हमारे लिए एसेंशियल ये फर्टिलाइजर्स कौन कौन से हो सकते हैं, तो उनके देखिए नाम लिखे हुए हैं, डैप, एमओपी और एसएसपी। ये डैप, एमओपी और एसएसपी जो है इनके प्राइसेस बहुत हाई हैं और डी कंट्रोल्ड हैं, क्योंकि ये सब न्यूट्रन बेस्ड सब्सिडी पॉलिसी 2010 से हैं, लेकिन फिर भी इंटरनेशनल प्राइसेस बढ़ने की वजह से हमारी जो पॉलिसी है इनके रेट को कम नहीं कर पाएगी। इसी के लिए भारत ब्रांड को प्रमोट करना था वन नेशन वन फर्टिलाइजर में। फार्मर को किसी भी तरीके से कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, हमें लोकल मार्केट को कैप्चर करना है, लोकल फर्टिलाइजर्स भेज के या ऐसी कंपनीज के फर्टिलाइजर्स बेच के जो कि फार्मर्स तक समय पे पहुंच सके ना। अपने आप में आप देख सकते हो एग्रीकल्चर के लिए, एग्रीकल्चर के अंदर आत्मनिर्भर भारत को किस तरीके से प्रमोट किया जा रहा है डायरेक्टली इनडायरेक्टली। आगे बढ़ते हैं हम अब करंट अफेयर्स में। ये आपको मैंने नोट करा दिया है, आप यहाँ पे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो आया है वो नोट कर सकते हैं। चौथी न्यूज है, इंडिया का जो मिशन है श्रीलंका में उसने चाइनीज एनवॉयस को सलाम किया है। ये पूरी की पूरी न्यूज है कि इसमें बेसिक डिप्लोमेटिक एटिकेट जो है वो खो रहे थे चाइनीज। शायद चाइना के जो फॉरेन एनवॉय हैं उनका जो कहना है वो शायद कंट्री की विचारधारा को बताता होगा कि वो लोग आपस में बुलिंग वुलिंग करते रहते हैं। इंडिया का uncharacteristically direct response referring to the diplomat in China came a day after Chinese ambassador Qi Zhenjiang wrote in Sri Lankan media about countries far or near bullying Sri Lanka. The ambassador had also observed that Sri Lanka overcame aggression from its northern neighbors 17 times. Now this is a direct reference to India. एंड ही हैज ऑल्सो कनेक्टेड दैट यूएस हाउस स्पीकर नैंसी पेलोसी का जो ताइवान विजिट है उसी के दौरान चाइना का जो सैटेलाइट ट्रैकिंग वेसल है युआंग वांग 5 हम्बनटोटा पोर्ट में, दैट इज अ सक्सेस। नाउ दिस इज व्हाट आई वाज टेलिंग यू व्हेन दिस शिप एग्जैक्टली केम व्हेन नैंसी पेलोसी वाज अबाउट टू विजिट ताइवान। Now, news speculations did not mention it. None of the newspapers did mention it. That it is to be noted that what is the timing of this ship coming towards India or coming towards a particular port that gives an advantage to the Chinese Navy over the Indian Ocean. Much of the speculation did not come about, but now you can see it's a direct statement from Chinese ambassador, which means my speculation in my news analysis of previous week was aptly correct. Whereas on the other side, we see people coming from Sri Lanka to take refuge in Tamil Nadu. As I have already stated, there is a lot of cultural relations of the northern province of Sri Lanka to the families of Tamil Nadu because they happen to speak the same language, that is Tamil. Now, because of that, we might find a lot of Sri Lankan citizens coming to the state of Tamil Nadu to seek refuge from the political and food crisis and hunger strikes and whatever it is that is going on in Sri Lanka. Now, Sri Lanka has की recovery beyond measures uncontrolled हो चुकी है। पाकिस्तान आई थिंक हैज ऑलरेडी रियलाइज्ड दिस एंड दैट इज वाई वो चाइना के जो सी पैक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है इसके बर्डन से अपने आप को बचाना चाहता है। वो देखने वाली बात है। आगे बढ़ेंगे, आप ये देख सकते हैं, ये सोर्स है गेटवे हाउस से लिया गया है ये पूरा इन्फोग्राफिक। आप देख सकते हैं चाइना का जो इन्वेस्टमेंट है श्रीलंका में जो प्रपोज्ड है वो कितना भयंकर है। एक तरीके से वो चाइना के नॉर्दर्न प्रोविंस को, चाइना के वेस्टर्न प्रोविंस को, चाइना के सदर्न प्रोविंस को इन्वेस्ट करके अपना बनाना चाहते हैं या वहां पे अपना से रखना चाहते हैं। ये जो पर्टिकुलर एरिया है ये कोलंबो पोर्ट है, यहाँ जो पर्टिकुलर एरिया है वो हम्बनटोटा पोर्ट है और ये जो पर्टिकुलर रीजन देख रहे हो यहाँ पे तमिलियंस रहते हैं। दिस पर्टिकुलर एरिया इज वेरी वेरी क्लोज टू इंडिया। श्रीलंका के ईस्टर्न साइड में आखिरकार चाइना ने क्यों नहीं इन्वेस्ट किया, सोचने वाली बात है। इंडिया यहाँ, चाइना यहाँ से पाकिस्तान, इस जगह से वो सीपेक को यानी ग्वादर पोर्ट को टच में रखेगा, साउथ से वो पैसिफिक को टच में रखेगा, साउथ से वो मिडिल ईस्ट को भी टच में रखेगा और इसी तरीके से श्रीलंका के दोनों साइड में
वो बे ऑफ बंगाल उसको चाहिए नहीं, उसको चाहिए पैसिफिक से स्टेट ऑफ मलक्का का रास्ता, स्टेट ऑफ मलक्का के पास उसको सिक्योरिटी चाहिए, उसको बे ऑफ बंगाल से कोई मतलब नहीं है। उसको बे ऑफ बंगाल से अगर मतलब होता तो वो म्यांमार से रास्ता बनाने की कोशिश करता। अभी म्यांमार से उसकी बातचीत ज़्यादा हो नहीं पा रही है, इसीलिए श्रीलंका एक तरीके से मिसयूज हो सकता है। ये बात श्रीलंका को अब शायद समझ में आएगी। आगे बढ़ते हैं। ट्राईपार्टाइट सिस्टम ऑफ कंसल्टेशन इन लेबर लॉस की अगर हम बात करें तो यहां पे देखिए ये कह रहा है कि तिरुपति में जो कॉन्क्लेव हुआ है वो एक तरीके से रिंगिंग बेल है, डेथ नेल है ट्राईपार्टाइट सिस्टम की। ट्रेड यूनियन से कहा है कि कभी भी आप लोग की मुलाकातें हो तो जरा हमसे भी पूछ लिया करिए। इसने कहा 151st सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की जो मीटिंग हुई है बीएमएस में हेल्ड इन भुवनेश्वर ऑफ ओडिशा ऑन सैटरडे डिमांडेड द सेंटर इमीडिएटली कॉल द इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस। नाउ इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस जो है वो बहुत पुरानी है, 1948 की है, और ये 1948 की बेसिकली जो ये लेबर कॉन्फ्रेंस है ये बी.आर. अम्बेडकर जी की शुरुआत है। बोला है इनको भी बुलाइए जब भी आप मीटिंग करें, ठीक है, बी.आर. अम्बेडकर। नाउ व्हाट इज इंपॉर्टेंट इन दिस? What is important? Why these meetings are there? Why is the center conducting the labor meets? You see, 4 labor laws have been basically compiled, enacted right now after compiling 48 of the labor laws. 48 labor law को मिला के कम कर दिया गया है, 4 लेबर लॉ में तोड़ दिया गया है। वो 4 लेबर लॉ कौन है? तो 2019 में मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने लेबर कोड्स इंट्रोड्यूस किए थे जिसमें 29 सेंट्रल लॉज लिखे थे, और इसमें 29 सेंट्रल लॉज हैं लेकिन बहुत सारे स्टेट लॉज हैं। एज यू नो, लेबर जो है, जो लेबर पर्टिकुलरली चीज है वो कॉन्करेंट लिस्ट में आती है। कॉन्करेंट लिस्ट में आने से क्या है, केंद्र और राज्य दोनों के पास पावर है कि वो उस पर कानून बना सकता है। और जो कोड्स हैं ये रेगुलेट करते हैं वेजेस को, यानी कोड्स ऑन वेजेस, कोड्स ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशंस, कोड्स ऑन सोशल सिक्योरिटी, कोड्स ऑन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, health and working conditions. These are the 4 labor codes. Now they have been passed, the bills on the other 3 areas. So codes on wages have been passed, जबकि बाकी तीनों को स्टैंडिंग कमेटी ऑन लेबर के पास भेजा गया है और स्टैंडिंग कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सारे तीनों बिल पे सजेस्ट कर दी है। और अब सेंट्रल गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि स्टेट गवर्नमेंट के साथ डिस्कशन करके हम क्या करें, इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा जल्दी इंप्लीमेंट कराने की कोशिश करें। और गवर्नमेंट ने ये लॉस को रिप्लेस कर दिया है सितंबर 2020 से। दिस नोट डिस्कसेस सम ऑफ द की इश्यूज रिलेटेड टू द लेबर लॉज एंड द प्रोविजंस इन द 4 codes. This note shall be read in conjunction with the legislative briefs on the 4 codes and the note on the 3 new bills. Now this particular note basically is the note that has been already provided to you. So you will find there, अगर लेबर कोड्स के ऊपर, तो आपको पता चलेगा ये सब चीजें आपको पहले से बता चुके हैं। और ये ट्राईपार्टाइट सिस्टम क्या है, देखिए, जहां पे गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो, ट्रेड यूनियंस इन्वॉल्व हो और मैनेजमेंट इन्वॉल्व हो, यानी फैक्ट्री ओनर्स, यहाँ सब, इन सब के बीच में जो रिलेशनशिप है वो प्राइमरी है एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में, बाकी गवर्नमेंट के साथ सेकेंडरी रिलेशनशिप है। तो जो स्टेट है बस वो डायरेक्शंस की तरह काम कर सकता है, एक बैलेंसिंग फोर्स की तरह काम कर सकता है। तो कभी भी स्टेट को डायरेक्टली एम्प्लॉय के साथ मीटिंग नहीं करनी चाहिए, स्टेट को आपस में मीटिंग नहीं करनी चाहिए अगर उसको लेबर लॉज को इंप्लीमेंट कराना है, बिकॉज इट इज अल्टीमेटली गोइंग टू अफेक्ट अ लार्ज नंबर ऑफ लेबर फोर्सेज ऑफ इंडिया। मूविंग फर्दर अहेड, प्राइम मिनिस्टर को जो फोटोग्राफ आई है उसमें खादी प्रोडक्ट्स प्रमोट करते हुए दिखाई गए हैं और कहा गया कि द फैब्रिक कैन बिकम एन इंस्पिरेशन टू मेक इंडिया सेल्फ रिलायंट बाय 2041, यानी टेक्सटाइल में भी हम सेल्फ रिलायंट होना चाहते हैं 2047 तक। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने खादी फेस्टिवल अहमदाबाद में अटेंड किया और एक फुट ब्रिज का इनॉग्रेशन किया जिसको उन्होंने साबरमती नदी के ऊपर इनॉग्रेट किया और उस ब्रिज का नाम रखा अटल ब्रिज। और इन्होंने कहा कि जिस तरीके से खादी जो है हमारे फ्रीडम मूवमेंट का जो बहुत मेजर फोर्स था वो अब इंस्पिरेशन बन गया है पूरे भारत के लिए और वो हमें सेल्फ रिलायंट बनाने में मदद करेगा 2047 तक। और कहा है कि हमें उसको अगर पूरा करना है तो हमें खादी को प्रमोट करना पड़ेगा। और कच्छ में अभी नरेंद्र मोदी साहब स्मृति वन को भी इनॉग्रेट करेंगे जिसमें ऐसे लोगों को दर्शाया जाएगा जिन्होंने 2001 के गुजरात अर्थक्वेक में रेजिलियंस शो किया और खुद को बचा के बाहर आए। आगे बढ़ते हैं। इंडिया ने अर्जेंटीना का मालविना केस जो है वो सपोर्ट किया है। नाउ मालविना केस अगर आप देखोगे तो आपको यहां दिखाई देगा। अब ये क्या है पर्टिकुलरली, अर्जेंटीना यानी साउथ अमेरिका के बगल में जो साउथ अटलांटिक ओशन है वहां पे कुछ आइलैंड्स हैं जो कि यूनाइटेड किंगडम के कंट्रोल के अंदर आते हैं। अब इंटरनेशनल लॉ ऑन वाटर है, यूएन क्लोज है जो कि स्टेट करता है आपकी बाउंड्रीज को। अब अर्जेंटीना जो ऑरेंज में आप देख रहे हो, ये पूरा एरिया जो ऑरेंज में आपको दिखाई दे रहा है, ये बेसिकली अर्जेंटीना क्या कह रहा है, अर्जेंटीना कह रहा है कि ये हमारा एरिया है एज पर द इंटरनेशनल लॉ। और जो दूसरा आपको रेड में दिखाई दे रहा है, द रेड एरिया दैट यू कैन सी, दिस पर्टिकुलर एरिया, ये फॉकलैंड आइलैंड का यानी यूनाइटेड किंगडम कहता है कि दिस इज आवर टेरिटरी। नाउ द पॉइंट इज दैट
आई टोल्ड यू, फॉकलैंड आइलैंड के पास नीचे एक्सप्लोरेशन एरियाज हैं, यानी कि ओशन बेड में वो तेल है अर्जेंटीना को, इसीलिए फॉकलैंड आइलैंड के साथ ये अपना टेरिटोरियल डिस्प्यूट और मालवना बेसिन के साथ सेटल करना पड़ेगा। इंडिया ने बोला है कि तुम्हारे इस पर्टिकुलर केस में हम साथ में हैं। एस जयशंकर जो है वो अर्जेंटीना के अभी विजिट में हैं और वो 3 और कंट्रीज में विजिट करेंगे साउथ अमेरिका की। इंडिया का ये आउटरीच देखा जा रहा है जहां पे वो साउथ अमेरिकन कंट्रीज को ब्रिक्स नेटवर्क के अंदर लाने की कोशिश करेगा, साउथ अमेरिकन कंट्रीज को वो G20 फ्रेमवर्क के अंदर होस्ट करेगा तो उनको इंक्लूड करने की कोशिश करेगा, और वो यूनाइटेड नेशंस की मेन बॉडीज क्या है, यूएन रिफॉर्म्स की बात करता है ब्राजील और साउथ अफ्रीका इन सब के साथ मिलके। रिसेंटली आपने सुना है उरुग्वे जो है, यानी अर्जेंटीना, ब्राजील और उरुग्वे, ये 3 साउथ अमेरिकन कंट्रीज इंपॉर्टेंट हैं। तो उरुग्वे को हमने बोल दिया कि भाई तुम न्यू डेवलपमेंट बैंक का पार्ट बन जाओ, और बना भी दिया है। और उसी तरीके से अब अर्जेंटीना को हम ब्रिक्स का पार्ट बनाने वाले हैं, यानी कि साउथ अमेरिका को ब्रिक्स फ्रेमवर्क में इंक्लूड किया जाएगा। तो ये पहली बार ऐसा देखा गया है कि जो अर्जेंटीना में गए हैं, क्योंकि अभी अर्जेंटीना के जो फॉरेन मिनिस्टर थे जिनका नाम है सैंटियागो कैफियारो, वो अप्रैल दिस ईयर में आए थे इंडिया की विजिट पे। अब ये सब डेवलपिंग कंट्रीज हैं, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, इनका आपस में एंगेजमेंट होना जरूरी है। अब कॉन्फ्लिक्ट में क्योंकि यूनाइटेड किंगडम है जो कि डेवलप्ड कंट्री है, अगेन इंडिया जो है अपनी डिप्लोमेटिक बाउंड्रीज को सेटलमेंट के लिए सबका साथ देता ही है और कहता है कि नॉन इंटरफेरेंस है हमारा, बट या हम आपके कॉज के साथ खड़े हैं कि नहीं गलत हो रहा है आपके साथ, आइलैंड जो है वो आपके पास ही आना चाहिए। अब आगे बढ़े, ये नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है हमारे यूयू ललित 49th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है अभी रिसेंटली अपॉइंट किए गए हैं। क्या आपको पता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ओथ कौन दिलाता है? Yes, the correct answer is the President of India. Do you know Chief Justice of India is also called as the Master of the Roster? Master of the Roster because he decides कि कौन सा जज कौन से मैटर को सुनवाई करेगा, कितने जजेस बिठाने हैं पर्टिकुलर मैटर के लिए। Now this particular news आपको ब्रीफ में पढ़ना चाहिए। अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर कर देंगे मुझे कमेंट सेक्शन में तो बहुत अच्छा होगा। I would be able to get it because this particular news is basically focusing on the Constitution bench. Chief Justice यूयू ललित ने ये कहा है, देखिए ये जो मेरा टेन्योर है इसमें जो वर्किंग डे मुझे मिलने वाला है वो काफ़ी कम मिलने वाला है बिकॉज बाकी सारा वेकेशन में हो जाएगा। और इन्होंने ये भी अर्ज किया है कि मैं कोशिश करूंगा सुप्रीम कोर्ट के जजेस से और बाकी हाई कोर्ट के जजेस से ये कहने की कि आप वैकेशन में एटलीस्ट कुछ जजेस को बिठाइए जो कि सुनवाई करते रहें, क्योंकि भारत में पेंडेंसी ऑफ केसेस जो है वो बहुत बड़ा मुद्दा है। और क्योंकि आपको पता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में 30 जजेस हो सकते हैं, तो 30 जजेस होते हैं। अब बेसिकली ये टोटल नंबर हो गया है 33 + 1 हो गया है। तो इसमें आपको पता चलेगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज वन ऑफ द जजेस। नाउ इन दिस पर्टिकुलर लाइट व्हाट यू हैव टू ऑलवेज रिमेंबर इज दैट व्हाट इज अ कॉन्स्टिट्यूशन बेंच। Now the question is how many number of judges are required to constitute a constitution bench? 3, 5, 7, 13. Now let me tell you the maximum that has been sat together. The maximum that can sit is the 15 number of judges. 15 judges एक साथ आ सकते हैं एक constitution bench को बनाने के लिए, but that is the maximum number. What I'm asking is the minimum number of judges that are required to फॉर्म। सो प्लीज इन क्वेश्चंस ऑप्शंस को देख के आप अपना आंसर ऐसे बताइएगा, 1 का ए है कि 1 का बी है कि 1 का सी है। ऑलराइट, करेक्ट आंसर्स को लाइक कर दिया जाएगा। इंटेलिजेंसीज वांट द क्रिप्टोज टू बी रेगुलेटेड विद एन एग्जिस्टिंग लीगल फ्रेमवर्क। इंटेलिजेंसीज मतलब इंटेलिजेंस एजेंसीज ने यह कहा है कि देखिए क्रिप्टो डील पे हमें कानून चाहिए। अगर आप कानून नहीं बना पा रहे हैं तो 17 अगस्त को नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजीज कॉन्फ्रेंस में अमित शाह मौजूद थे। उनसे यह कहा गया कि पिछले कुछ महीनों में हमने देखा है कि चाइना की कुछ कंपनीज हैं जो डिजिटल लोन मोबाइल ऐप्स चला रही थी और वो यहां से पैसे लेके बाहर भेज रही थी। ओनरशिप क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस की जो है वो ऑपरेटेड इन इंडिया है अगर, तो उसमें चाइनीज कंपनी है पर वो रिकॉर्ड में हमारे नहीं है। ऐसे में बहुत सारा पैसा चाइना जा रहा है। इसमें उन्होंने ये कहा है सेक्शन 19(1) ऑफ सीआरपीसी को आप अमेंड करिए ताकि हम फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट के एब्सेंस में क्रूशियल इंफॉर्मेशन जो है उसको सिक्योर कर सकें। इसी कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा गया कि जो चैलेंजेस हैं क्रिप्टो करेंसीज के वो काफी ज्यादा हैं, क्योंकि ये एक्सचेंजेस का कोई भी फिजिकल ऑफिस नहीं है, कोई डेटा स्टोरेज नहीं है, और डेटा स्टोरेज अगर है तो क्लाउड बेस्ड है, तो हमारा कोई भी कंट्रोल उसके ऊपर नहीं है। और वो सेम तरह की पावर जो है पीएमएलए एक्ट के अंदर भी चाह रहे हैं ताकि इस तरह के एक्सचेंजेस को हम कंसीडर कर सकें। अभी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने एक मैटर इन्वेस्टिगेट किया जहां पे 370 करोड़ रुपए फ्लिपवोल्ट नाम की कंपनी के सीज कर लिए गए। उनके एसेट्स 65 करोड़ के यानी वजीर एक्स नाम की कंपनी के सीज कर लिए गए। जुलाई 18 को फाइनेंस मिनिस्टर ने
ये कह दिया था लोकसभा में कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये कहा है कि क्रिप्टो करेंसीज को बैन कर देना चाहिए, क्योंकि उनके हमारी इकोनॉमी में डीस्टेबलाइजिंग इफेक्ट्स हैं, हमारी कंट्री की मॉनेटरी और फिस्कल हेल्थ को वो डैमेज कर सकते हैं, बर्डन बढ़ा सकते हैं। इसीलिए बैन ऑन क्रिप्टो करेंसीज जो है इफेक्टिव तरीका है इंटरनेशनल एग्रीमेंट इन प्लेस का। और दूसरा चीज ये भी कहा गया है कि एट द कॉन्फ्रेंस होम मिनिस्टर को ये भी इन्फॉर्म किया गया कि रेगुलेशन और एम्पावरिंग ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज विद द पावर टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन फ्रॉम क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस एंड अर्ज देम टू प्रोएक्टिवली शेयर इंटेलिजेंस ऑन सस्पिशियस फ्लोज विद पुलिस एंड इंटेलिजेंस एजेंसीज। नाउ क्रिप्टो करेंसी हैज बिकम अ मेजर इशू एंड GS2 में hence this becomes a major topic. What are the impacts? Why RBI is saying that cryptocurrency should be banned? What is its impact on the economy? Can it have an impact on the security? This is all what you can study. Now RBI के ने जो 31 मई को जो अपना सर्कुलर दिया है उसमें कहा है कि जो रेगुलेटेड एंटिटीज हैं हमारे अंडर वो अपने कस्टमर ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस को इन ट्रांजैक्शंस में मैनेज करने की कोशिश करेंगी और नो योर कस्टमर एंड AML कॉम्बैटिंग CFT ऑब्लिगेशन अंडर PMLA इन सब को फॉलो करेंगी और बाकी जो फीमा के अंडर कॉम्प्लायंट मेजर्स हैं उन सब के साथ कोशिश करेंगी मैनेज करने की। और RBI ने ये कहा है कि क्रिप्टो करेंसीज को प्रोहिबिट कर देना चाहिए। रशिया ने न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी जो है उसको बैन कर दिया है। अभी नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है क्या? ये प्रोलिफरेशन ट्रीटी एक एग्रीमेंट है जो कि 1968 का है, 1968 का है, जिसमें सारे न्यूक्लियर और नॉन न्यूक्लियर पावर्स आ गए थे और उन्होंने कहा था कि हम एक न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का अच्छे हित में, दुनिया के हित के लिए इस्तेमाल करेंगे, न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाएंगे। तो न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन इज बेसिकली डिसआर्मामेंट। ऑलराइट, इन द कंटेक्स्ट ऑफ द कोल्ड वॉर आर्म्स रेस एंड माउंटिंग इंटरनेशनल कंसर्न अबाउट द consequences ऑफ अ न्यूक्लियर वॉर। ये ट्रीटी जो है ये आर्म्स कंट्रोल के एडवोकेट्स के लिए बड़ी ही सक्सेस मांगी गई, लेकिन इसका इंटरनेशनल इंप्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा है। इसमें अराउंड 191 कंट्रीज हैं जो स्टेट पार्टीज हैं और हर 5 साल में ये अपना रिव्यू कराती है। पिछला ऐसा रिव्यू 2015 में हुआ था और इसके बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं आ पाया था, क्योंकि मिडल ईस्ट जोन जो है उसको हमें मास डिस्ट्रक्शन के से बेसिकली वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के कैप्चर से बचाना है या कह लीजिए रिमूव कराना है, इसीलिए उसमें सीरियस डिफरेंसेस थे। अब आपको पता है यहाँ पे मिडिल ईस्ट में एक कंट्री है जो कि ईरान, बहुत इंपॉर्टेंट है। रशिया लेट ऑन फ्राइडे ब्लॉक्ड एग्रीमेंट ऑन द फाइनल डॉक्यूमेंट ऑफ अ 4-week रिव्यू ऑफ UN ट्रीटी कंसीडर्ड टू बी द कॉर्नर स्टोर ऑफ न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट। एंड सिंस रशिया ने कहा कि इसमें बहुत सारे कुछ ऐसे 36 पॉइंट्स हैं जिनसे हम अग्री नहीं करते हैं और इसीलिए वो डिफरेंसेस जो है अभी खत्म नहीं हुए हैं, पर उनको डिस्कशन जारी चल रहा है और इसीलिए अभी इस पे कुछ कह पाना मुश्किल है। आगे बढ़ें। रशिया चाइना का जो कोऑपरेशन है आर्टिक में वो कंसर्न है, ऐसा नाटो का कहना है। वो हमारे इंटरेस्ट को चैलेंज करता है। नाटो के सेक्रेटरी जनरल जेंस स्टोल्टनबर्ग ने वार्न किया है कि रशिया का जो मिलिट्री बिल्डअप है आर्टिक में और चाइना जो अपना इंटरेस्ट बढ़ा रहा है उस पार्ट में, इससे नाटो कंट्रीज को खतरा हो सकता है। अभी कनाडा गए हुए हैं मिस्टर स्टोल्टनबर्ग और उन्होंने कहा है कि नॉर्थ अमेरिका टू और जो शॉर्टेस्ट पाथ है वो बेसिकली नॉर्थ पोल के ऊपर से जाता है और इसीलिए रशिया ने एक नया आर्टिक कमांड जो है वहां पे सेटअप कर दिया है और इसलिए रशिया के जो मिलिट्री बिल्डअप है, नए वेपन सिस्टम्स हैं, वो उनको टेस्ट भी कर रहा है वहां पे। दूसरा जो आप यहाँ पे ग्लोब देख रहे हो, यहाँ पे आपको रेड कलर का जो रूट दिखाई दे रहा है वो देखिए चाइना के शांघाई को किस तरीके से रॉटरडैम और मॉस्को से कनेक्ट कर रहा है ओवर द आर्टिक circle. Now again this is a part of Belt and Road Initiative, or you can say not Belt and Road Initiative, the ancient Silk Route, the ancient Silk Route। और ये ancient Silk Route में ये एयर सिल्क रूट है वो माना जा रहा है और 1 सी रूट आपको ब्लू में दिखाई दे रहा होगा। Now this is what is happening in the Arctic Circle। इंडिया की अपनी आर्टिक पॉलिसी है, India's Arctic policy। Now what you can try to do is you can try to read about it। इंडिया ने रिसेंटली इंडिया अंटार्कटिका बिल पास किया है, तो क्या इंडिया ने आर्टिक के लिए भी कुछ ऐसा बिल पास किया है? That is something that you can read about। Moving further ahead, improving access to antibiotics। एंटीबायोटिक्स का एक्सेस जो है वो इनोवेशन के माध्यम से बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस जो है वो ग्रोइंग हेल्थ क्राइसिस में बदलता जा रहा है। इसके लिए मल्टीपल अप्रोच लेना जरूरी है। और आपको यहाँ पे एक नाम दिखाई देगा सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का। सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को नोबेल प्राइज दिया गया था पहली एंटीबायोटिक पेनिसिलिन बनाने के लिए। उन्होंने कहा है कि पहले पेनिसिलिन जो है वो किसी भी दुकान में खरीदी जा सकती है, लेकिन उससे एक डेंजर है। डेंजर ये है कि कोई आम आदमी जो है वो अगर अपने आप को कम डोज ले, अंडर डोज ले, तो ऐसे में वो माइक्रोब्स को ताकत दे रहा है कि वो खुद को मैनिपुलेट कर लें
अपने जेनेटिक म्यूटेशन कर लें और वो एंटीबायोटिक्स को बाईपास कर लें आपकी बॉडी में। और उस समय उनके जो स्पीच है उसके 100 साल के बाद समय आ चुका है जहां पर रेकलेस यूज हो रहा है एंटीबायोटिक्स का, इंक्लूडिंग पेनिसिलिन, जिसमें जो बैक्टीरिया है, वायरस है, फंजाई है, पैरासाइट है, वो सब कॉमनली यूज्ड एंटी माइक्रोबियल्स के रेजिस्टेंस हो चुके हैं। और इससे ज़्यादा डराने वाली बात यह है कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो गया है कि हम नए तरीके की ड्रग्स को इन्वेंट करें, क्योंकि हमारा जो एंटी माइक्रोबियल्स का जो स्टैश है करेंटली वो ख़त्म हो रहा है और वो सारे ड्रग्स रेजिस्टेंट सुपर बग्स जो हैं वो इवॉल्व कर ले रहे हैं और इन एग्जिस्टिंग माइक्रो एंटीबायोटिक्स को टेक ओवर कर ले रहे हैं। और ऐसी पूरी चीज़ को हम कहते हैं एंटी माइक्रोबियल AMR। वो ग्लोबल क्राइसिस है और इसमें इंडिया में कुछ ज़्यादा ही है। इसीलिए हमें नए एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स का ढूंढना, पता करना ज़रूरी है, और वो क्योंकि बहुत महंगा है, टाइम कंज्यूमिंग है, इसीलिए लो और मिडिल इनकम कंट्रीज के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। यहाँ पे हमें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ टाई अप करना पड़ेगा। ऐसे में हो सकता है यूनाइटेड नेशंस हमारी मदद करे। AMR क्राइसिस की अगर स्केल की बात करें तो 2019 में जो ड्रग रेजिस्टेंट सुपर बग्स थे उन्होंने 1.27 मिलियन पीपल को मार दिया। यानी एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस होने की वजह से, दवा असर ना करने की वजह से लोगों की मौत भी हो रही है, इंक्लूडिंग HIV और मलेरिया। ये यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट है और कहा है कि 10 मिलियन से ज्यादा लोग 2050 तक खत्म हो सकते हैं। तो इस पूरे आर्टिकल को आप पढ़िएगा किस तरीके से DBT, CISR और ये सारे बॉडीज जो हैं, CSIR, ICMR, DBT, DST इंडिया में लगे हुए हैं और क्या रोल प्ले कर सकते हैं, इसमें बायरक का क्या रोल हो सकता है, ये सारी चीज़ें आपको बताने की कोशिश करेगा। तो आप यहाँ पे जो कंक्लूजन पार्ट है इसको अपनी नोट्स कॉपी में लिख लीजिएगा और ये आपके GS3 के पॉइंट ऑफ व्यू से साइंस एंड टेक बहुत इंपॉर्टेंट। मूविंग फर्दर अहेड, यूनाइटेड नेशंस ने ये कहा है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली कहता है कि ओवर प्रिस्क्राइबिंग एंटीबायोटिक्स, पेशेंट अपना ट्रीटमेंट ना खत्म करें। एंटीबायोटिक का लाइफ स्टॉक यानी जानवरों में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए तो वो फूड चेन में आ जाएगा। इन्फेक्शन कंट्रोल हॉस्पिटल क्लिनिक्स में प्रॉपर ना हो, हाइजीन और प्रॉपर सैनिटेशन ना हो, या नए एंटीबायोटिक्स डेवलप ना किए जाएं, इन सब की वजह से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ सकता है। लास्ट में आपको मैं एक स्टेट में छोड़ रहा हूं, बिल्किस बानो का जो कॉन्विक्ट वाला मैटर आया है, याद है, बहुत अच्छे से हिंदू में एक्सप्लेन किया गया है। इसमें किस तरीके से उन 11 लोगों को छोड़ा गया है उस पे आपको इंफॉर्मेशन दी गई है क्वेश्चन फॉर्मेट में। इसे अच्छा तरीके से आपको आर्टिकल पढ़ने को नहीं मिलेगा, तो इस आर्टिकल को आप खुद पढ़ेंगे और आप इस सेकंड क्वेश्चन को जो है आंसर करने की कोशिश करेंगे। कहता है सेकंड क्वेश्चन, द रेमिशन कैन बी ग्रांटेड टू एनीवन कॉन्विक्टेड ऑफ सीरियस ऑफेंस इन कंसल्टेशन विद द गवर्नमेंट प्रोवाइडेड A, the convict has undergone 10 years of imprisonment, B, convict has undergone 14 years, C, convict is undergoing a life imprisonment, D, death penalty execution of the convict has been delayed। इनमें से किन कंडीशंस हो जाने के बाद ही आपको रेमिशन जैसी एक रेमेडी, एक रेस्पाइट मिलती है। इस क्वेश्चन के साथ आज के द हिंदू एनालिसिस को सरमाइज करते हैं कि हमने क्या क्या टॉपिक्स कवर किए हैं। तो अगर हम अपने टॉपिक्स पे आ जाएं तो सुप्रीम कोर्ट जजेस रूल्स में हमने देखा कि रिलैक्सेशन, इनके लिए जो रूल्स हैं रिलैक्स किए गए हैं और पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स इनको एक्सटेंड किए गए हैं मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस द्वारा। पॉक्सो एक्ट के अंडर हमने देखा कि काफी स्ट्रिंजेंट लॉ है और ये 2012 में बेसिकली आया गया था चिल्ड्रन को सेक्सुअल असॉल्ट से, पोर्नोग्राफी से, सेक्सुअल अब्यूज से बचाने के लिए। चिल्ड्रन की डेफिनेशन जो है 18 साल के नीचे के किसी भी बच्चे को चाइल्ड कहा जाता है एज पर द डेफिनेशन, और 16 साल के बच्चे, 16 साल से कम आयु के बच्चे के साथ अगर पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट किया गया है तो सजा 20 साल तक की भी हो सकती है। सिंगल ब्रांड जो है, क्योंकि हमारे यहाँ पे डैप और MOP और SSP नाम के फर्टिलाइजर्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इंपोर्ट डिपेंडेंट हैं, तो हमें वन प्रोडक्ट वन फर्टिलाइजर नाम की जो योजना है मानसुख मांडवी जी लॉन्च करते हुए दिखाई दी है। इंडिया के मिशन ने श्रीलंका के जो चाइनीज एनवॉय का स्टेटमेंट है युआंग वांग फाइन के ऊपर, नैन्सी पेलोसी की विजिट के ऊपर, उसको क्रिटिसाइज किया है और हमने ये देखा कि किस तरीके से श्रीलंका ईस्टर्न साइड और सदर्न साइड से चाइनीज इन्वेस्टमेंट से भरा हुआ है। ट्राइपार्टाइट सिस्टम ऑफ कंसल्टेशन इन लेबर लॉज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बेसिकली लेबर की जो लेबर लॉज हैं 4 जो 2019 में इंट्रोड्यूस किए गए थे उनको पारित कर दिया गया है, पास कर दिया गया है और उनका इंप्लीमेंटेशन के लिए स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ कंसल्टेशन चल रहा है। पर ट्राइपार्टाइट सिस्टम में यह कहा जाता है कि गवर्नमेंट प्लस एम्प्लॉयर प्लस एम्प्लॉयज आपस में बैठ के सलाह मशवरा करें, क्योंकि अल्टीमेटली ये लेबर वेलफेयर के बारे में है। प्राइम मिनिस्टर को देखा गया है खादी प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हुए और इसमें उन्होंने इंडिया को सेल्फ रिलायंट टेक्सटाइल
वो बनने के लिए बोला है 2047 तक। इसमें टेक्सटाइल पॉलिसी पढ़ने वाली रहेगी। इंडिया ने अर्जेंटीना के मालविना और फॉकलैंड आइलैंड्स में जो यूनाइटेड किंगडम के साथ है उसमें उनके केस को सपोर्ट किया है और बोला है यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी को रिस्पेक्ट करना चाहिए। इंडिया ने यह भी कहा है कि अर्जेंटीना को हम बहुत जल्द ब्रिक्स का हिस्सा बना लेंगे। नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का प्लान है कि वो एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को पूरे टेन्योर में फंक्शनिंग रखेंगे और ये है कहा उन्होंने कि साल भर तो रहेगी ही रहेगी। ऐसे में कॉन्स्टिट्यूशन बेंच क्या होती है, आपके लिए क्वेश्चन छोड़ के गया हूं मैं। इंटर एजेंसीज ने कहा है कि क्रिप्टोज को रेगुलेट करिए, 91 सीआरपीसी में पीएमएलए के अंडर किसी भी तरीके से लेके आइए, क्योंकि आरबीआई ने तो बैन करने की बात करी है, कंप्लीट बैन कर देंगे तो मनी लॉन्ड्रिंग कैसे प्रिवेंट करेंगे। इसीलिए एफआईआर रजिस्टर नहीं हो रही है, क्लाउड पे सारा डेटा स्टोर है, वो क्लाउड इंडिया के पास है नहीं, तो हमें लॉज की तो रिक्वायरमेंट है। और ये अमित शाह होम मिनिस्टर के सामने कंसर्न रेज किया है। तो अगेन मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रशिया ने न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी को फिर से रोक लगा दी 2015 के बाद। 2022 में जब रिव्यू हुआ तो कोई निष्कर्ष निकलते हुए नहीं समझ में आया है, क्योंकि बाकी कई डेवलप्ड कंट्रीज को एनपीटी के जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उससे प्रॉब्लम है। ये 191 कंट्री की 1968 में बनाया गया कानून है जो कि ये कहता है कि न्यूक्लियर पावर्स जिनके पास भी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है वो न्यूक्लियर आर्म्स नहीं बनाएंगी फर्दर, और जो हैं उनको धीरे धीरे डिसआर्म करेंगी। रशिया चाइना का कोऑपरेशन आर्टिक के लिए कंसर्न है। रशिया ने अपने आर्टिक कमांड्स बना दिए हैं, वहां पे वेपन टेस्टिंग कर रहा है। और चाइना के लिए बेसिकली अगर यूरोप जाना है तो वो उसके लिए थ्रू पोल्स शॉर्टेस्ट रूट पड़ता है, वो उसके एयर सिल्क रूट का पार्ट है। और ऐसे में नाटो के जेंस स्टोल्टनबर्ग ने कनाडा विजिट में कहा है कि हमें क्लोज ऑब्जर्वेशन रखना पड़ेगा, क्योंकि खतरा हमारे नाटो कंट्रीज को हो सकता है। फर्दर अगर हम बात करें तो एंटीबायोटिक्स के एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के ऊपर हमने डिस्कशन किया और कहा यह समझने की कोशिश की कि यह रेजिस्टेंस क्यों बढ़ता है, जिसमें हमने पेनिसिलिन के जो इन्वेंटर थे उनका नाम हमने देखा और यहाँ पे उनके जो ओपिनियंस हैं 100 साल पहले वो अभी भी वैलिड हैं, और किस तरीके से डीबीटी, डीएसटी, बायरैक, आईसीएमआर इस चीज़ को हटाने की कोशिश करेंगे। इनके बीच में कोऑपरेशन रिक्वायरमेंट है। और बिल्किस बानो के 11 जो कॉन्विक्ट्स थे वो कैसे वॉक फ्री कर रहे हैं, जिसमें हमने रेमिशन के ऊपर आपको क्वेश्चन नंबर 2 छोड़ा है ऑफ द डे। सो दिस वाज हर्षवर्धन त्रिपाठी। आई होप यू एंजॉयड द सेशन। आपको ये द हिंदू का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा है आप प्लीज कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। आपके फीडबैक्स, आपके सजेशंस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, हम उनको काफी इंपॉर्टेंस प्राइमेसी देते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग पेशेंट टू द हिंदू न्यूज एनालिसिस टुडे। आई होप टू सी यू guys in another The Hindu news analysis very soon. Till then, keep studying, keep hustling hard. Bye bye. Take care.